Hello students, I am Anamika and this is the next lecture on direct to indirect speech. As I told you in the previous lecture that in this lecture I will teach you to convert direct speech of interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences into indirect speech. लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख ले ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी. ओके, सो लेट्स बिगिन with the lecture. So, at first I will start with the interrogative sentences. Before that, we need to know what is an interrogative sentence. Interrogative sentence होता क्या है? So, the sentences of questions are called as interrogative sentences. मतलब प्रश्नवाचक वाक्य को हम interrogative sentence बोलते हैं. So, in this lecture, we will look that how to convert a direct speech of interrogative sentence into indirect speech. So, here are some rules to convert these type of sentences into indirect speech. So, let's begin with the rules. The first rule is for introducing the reported speech, instead of the verb said, the verbs like ask, question or inquired may be used. So, in this type of sentences हम said की जगह ask, question और inquired का यूज़ करते हैं. जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे said का यूज़ करते थे. इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ask, question और inquired का यूज़ करेंगे. सेकंड पॉइंट इज द ज्वाइनिंग वर्ड दैट इज़ नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. पहले हम ज्वाइनिंग वर्ड दैट का यूज़ करते थे. इस टाइप के सेंटेंसेस में वी डू नॉट यूज़ द ज्वाइनिंग वर्ड दैट. थर्ड पॉइंट इज इफ द क्वेश्चन बिगिंस विथ विच, व्हेन, व्हाट, वेयर, हुज, हाउ और any question words, the same is retained to introduce the reported speech. It means if your reported speech is starts with any question word like which, when, what, where, how, etc., the same is retained in the indirect speech. And the last point is if the question begins with an auxiliary verb, the conjunction if or whether is used in indirect speech. अगर आपका क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वेयर, एक्सेट्रा, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. अगर आपका क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम सेड की जगह इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसे एक एग्जांपल से देखते हैं. सो इन दिस एग्जांपल व्हाट इज रिटन? मोहन said to him, what are you doing? So, in this question, what is the reporting verb? As you already know, said is our reporting verb. And what is the reported speech? What are you doing is the reported speech. As you can see, the reported speech is start with a question word. ये reported speech आपका what से start हो रहा है. तो as per rule, we need to write it as it is. So how we can convert it into indirect speech? We need to write Mohan asked him what he was doing. So as per rule हमने said की जगह asked लिखा and question को as it is लिख दिया क्योंकि वो question word से start हो रहा है. सिर्फ हमने tense को convert किया. So इसका क्या इनडायरेक्ट स्पीच हुआ? मोहन आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग. ही का यूज़ हमने किसके लिए किया? ही का यूज़ हमने हिम की जगह पे किया है. एंड इसे प्रेजेंट टेंस में आपका डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब था. रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होगा. क्यों? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो वो पास्ट में है. इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि इफ़ योर reporting verb is in a past tense, you need to convert the reported speech in past tense in the indirect speech. So ये तो हुआ when your question begins with a question word. अब next question में देखेंगे
व्हेन योर क्वेश्चन बिगिंस विद द ऑक्सिलरी वर्ब, अगर आपका क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज माय मदर सेड टू मी आर यू नॉट वेल टुडे. दिस क्वेश्चन बिगिंस विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब. सो एज पर रूल हम इस सेंटेंस में वेदर और इफ का यूज करेंगे. सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच लाइक माय मदर आस्क्ड मी. आस्क्ड का यूज किया हम सेड की जगह पे. वेदर आई वॉज नॉट वेल दैट डे, हमने यहाँ वेदर का यूज किया एंड आई वॉज नॉट वेल दैट डे लिखा. आई का यूज़ किसके लिए हुआ, आई का यूज़ हुआ है हम यू की जगह पे, मतलब मी के लिए हमने आई लिखा है. और प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया है बिकॉज आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट है. सो वेदर आई वॉज नॉट वेल दैट डे क्यों लिखा, क्योंकि टुडे मतलब जो आपसे पूछा गया था वो पास्ट में पूछा गया था, इसीलिए हमने टुडे की जगह पे दैट डे का यूज़ किया. ठीक है. सो ये हुआ आपका हाउ टू कन्वर्ट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट एन इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, द सेंटेंसेस ऑफ क्वेश्चन, sentences of order, request and command are the sentence of imperative. imperative sentence होते हैं जब आपको कोई ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड दे रहा है, तो उसे हम imperative sentence बोलते हैं. सो इसे भी कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. सो एट फर्स्ट लेट्स लुक एट द रूल्स. सो फर्स्ट रूल इज द रिपोर्टिंग वर्ब said is to be changed into order, instructed, informed, directed, commanded, etc. जो आपका वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर, इंस्ट्रक्टेड, कमांडेड, किसी भी इस टाइप के वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप सेड को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट इज the preposition to that appears after said should be removed. said to लिखा होता है तो जो preposition to है उसे हम remove कर देते हैं. and the last point is the complete sentence without any change is to be rewritten after making suitable changes in the pronoun. बाकी sentence को हम as it is लिख देते हैं pronouns में कुछ change करके. so एक example से देखते हैं. First example is he said to me never make that mistake. मतलब कोई आपसे बोल रहा है कि उस मिस्टेक को दोबारा मत करना. It means somebody is warning you to not repeat the mistake. So इसे हम indirect speech में convert करने के लिए क्या करेंगे, said की जगह पे हम लिखेंगे warned. So we need to write he warned me never to make that mistake. That means somebody is warning you to not repeat the mistake. इसमें warning दी गई है इसलिए हमने said की जगह पे warn लिखा है. अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है तो उसमें हम क्या लिखेंगे said की जगह पे, या नेक्स्ट एग्जांपल से देखेंगे. She said to me please take the chicken out of the freezer. मतलब प्लीज़ बोला गया, दैट मीन समवन इज़ रिक्वेस्टिंग यू, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है. सो वी नीड टू राइट रिक्वेस्टेड एट द प्लेस ऑफ शी सेड. तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, वी नीड टू राइट शी रिक्वेस्टेड मी टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर. जस्ट बिकॉज आपसे रिक्वेस्ट किया गया है इसलिए आपने सेड की जगह पे रिक्वेस्टेड लिखा. ठीक है. तो आप अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच आप सेड की जगह पे कोई भी इम्परेटिव वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ये तो हुआ हाउ टू कन्वर्ट एन इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब लास्ट देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट
a sentence of exclamation or exclamatory sentence of direct speech into indirect speech. Let's begin with the rules of exclamatory sentences into exclamatory sentences. How to convert an exclamatory sentence of direct speech into indirect speech. So before that we need to know what is an exclamatory sentences. Exclamatory sentence होता क्या है? The sentence of sudden feeling. वैसे सेंटेंस जो आपके सडन फीलिंग्स को दिखाते हैं उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं. जैसे फीलिंग ऑफ जॉय, sorrow, any kind of feeling are known as exclamation. Okay, so here are some rules to change our direct speech of exclamatory sentence into indirect speech. So the first rule is the word of exclamation should be suitably changed into indirect speech and should be supported by the underlying feeling of joy, sorrow, etc. So इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हम सेड की जगह पे फीलिंग ऑफ जॉय और सॉरो को दिखाते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड. एज वी कैन सी हमने दो टाइप के सेंटेंसेस देखे, इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव. उसमें हमने दैट का यूज़ नहीं किया था. इस टाइप के सेंटेंस में हम दैट का यूज़ करेंगे. सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. दे said, "Hurrah, we have won the match." In this sentence, hurrah is written. So, your reported speech is, "Hurrah, we have won the match." Hurrah मतलब खुशी की बात है. So, we can convert it into indirect speech is like, they exclaimed with joy. Joy क्यों लिखे? क्योंकि ये खुशी की बात है. They exclaimed with joy that, यहाँ conjunction that का यूज़ किया गया है. They had won the मैच, मतलब वो खुशी से बोल रहे हैं. दैट मीन्स दे हैड वॉन द मैच. हैड की जगह पे हमने हैड का यूज़ हमने हैव की जगह पे किया क्योंकि योर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट. सो यू नीड टू कन्वर्ट योर रिपोर्टेड स्पीच इनटू पास्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच. ये तो हुई खुशी की बात. अगर कोई सेंटेंस कोई खुशी की बात से स्टार्ट हो रही है तो वी नीड टू राइट एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. अब नेक्स्ट देखेंगे व्हेन योर सेंटेंस इज ऑफ सॉरो. अगर दुख की बात होगी तो क्या लिखेंगे? सो इन दिस सेंटेंस व्हाट इज रिटन? दे सेड अलस वी हैव लॉस्ट द गेम. अलस मतलब दुख की बात हो गई, हम गेम हार गए. सो वी नीड टू यूज एट द प्लेस ऑफ सेड व्हाट वी कैन यूज? दे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो that they had lost the match. मतलब वो लोग दुख से बोल रहे हैं that they had lost the match. So यहाँ भी हमने have की जगह पे had का यूज़ किया एंड they का यूज़ किसके लिए हुआ? we के लिए हुआ बिकॉज वो लोग बोल रहे हैं. सो इन द प्लेस ऑफ said we used exclaimed with sorrow क्योंकि ये दुख की बात थी इसलिए हमने एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का यूज़ किया. सो दैट्स इट. सो हमने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो नाउ आई कैन होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. अगर आपको इसे और बेहतर तरीके से समझना है तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम्पल्स बनाने होंगे. वो एग्ज़ाम्पल आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी बुक से भी ले सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी ले सकते हैं. और अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ भी सकते हैं या आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.